हम लोग को कोई शौचालय नहीं है। नहर पे जाते हैं जंगल में। लेटरिन के ऊपर लेटरिन करो, कोई निकलता कोई कहते हो, शर्म भी लगती है, वो क्या करे। इधर जाते हैं लेटरिन करन तो आदमी वहीं बैठे थे बराबर में और लेडीज भी। हमारी बहन हमारी मम्मी इधर आती है लेटरिन करने, लड़के भी आते हैं, तो ये लोग बुरी नजरों से देखते हैं इधर, इसीलिए हमें बुरा लगता है। 10-10 रुपये लेते हैं, नहीं देते तो लेटरिन नहीं करने देते, कहते जाओ बाहर करो। अच्छा, और वो सरकारी है? सरकारी ही है भैया, हाँ सरकारी। These are the voices of women from Ghaziabad in Uttar Pradesh. Ghaziabad is part of the National Capital Region. Yet, when we went to many places in Ghaziabad, we found that people were struggling for even basic facilities. They told us shocking stories on how they have to practice open defecation, how they walk for kilometers for using a public convenience, how the people who manage public toilets have to be bribed, how women have to openly defecate on fields along with men watching over them, and sometimes how women and men have to defecate together, at times squatting next to each other on a field, setting aside their sense of self-respect and honor out of sheer compulsion and helplessness. This is Prime Minister Narendra Modi speaking in 2019 to mark the birth anniversary of Mahatma Gandhi. In 2019, the Prime Minister declared that India was free from open defecation. During this speech, he also went on to say that even rural Indians themselves have gone on to declare that they are free from the problem of open defecation. साथियों, आज ग्रामीण भारत ने, वहां के लोगों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। स्वेच्छा से, स्वप्रेरणा से और जन भागीदारी से चल रहे स्वच्छ भारत अभियान की ये शक्ति भी है और सफलता का स्रोत भी है। But to know the reality of the country's Swachh Bharat Abhiyan, we don't have to go far. Very close to the corridors of power in Delhi, in Ghaziabad, which technically falls under UP but is part of the National Capital Region, we found despairing residents speaking about how they are forced to openly defecate, even in a city like Ghaziabad. पब्लिक स्कूल पास से यहाँ पे हम लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, हम लोग को कोई शौचालय नहीं है। शौचालय की दिक्कत यही है कि नहर पे जाती हूँ लेटरिन करने के लिए, अच्छा खराब आदमी रास्ते में मिलते हैं, अंधेरे में जाते हैं, जंगल रहते बड़ा जंगल में बैठ के जाते हैं। यहाँ रहने से हमें कम से कम कहते हैं 30-32 साल हो गया, और 30-32 साल से कोई शौचालय नहीं? कोई शौचालय नहीं है। शौचालय के लिए कहाँ जाते हो आप? भाई कचड़ा में जाते हैं। कचड़ा में? हाँ। 20 साल से? हाँ, जगह वही औरतें कर रही हैं, वही आदमी कर रहे हैं, तो परेशानी है। Parks, playgrounds, canals, garbage areas, forest-like zones, open fields, under flyovers next to a bustling city. These women told us that they are forced to defecate in the open. What we heard next was shocking. These residents of Ghaziabad told us that men and women squat next to each other and defecate daily. इधर नहीं बनी शौचालय, वहाँ जाते पार्क में तो हम आगे बैठ जाते, पीछे आदमी बैठ जाते हैं, बोलते हैं तो बदतमीज से नंगे करके भागते हैं। इधर जाते हैं लेटरिन करन तो आदमी वहीं बैठे थे बराबर में और लेडीज भी। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इतनी नहीं है कि समझ में ही नहीं आ रही कि क्या करें। अगर दिन में जाना चाहें तो नहीं जा पा रहे। वहीं पे आपको हमने एक ही चीज़ बता दी, सारे जेंट्स एक यहाँ बैठे, लेडीज यहाँ बैठी हैं। इतनी बुरी हाल है लेडीजों के लिए, हद ज्यादा शर्म मारे सिर झुक जाता जब देखते हम जाके। कभी कभी चलो बहुत से बंदे ऐसे हैं जो बाथरूम लेटरिन चले जाते, पैसे दे के वहाँ करे आते जाके। कोरोना टाइम पे तो बहुत ही बुरा हाल होगा, कुछ लोगों ने अपने गड्ढा खोद लिए, उसी में करने लगे। तो हर इतनी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत ज्यादा मैम यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं, आप ऐसे समझिए। It is not just about men and women defecating in the open together. The problem is more serious than that. These women told us that sometimes there is a cesspool of shit, and out of want of place, they are forced to defecate on top of other human waste. इतनी गंदगी पड़े रहते हैं, लेटरिन जाने का जाओ, लेटरिन के ऊपर लेटरिन करो, कोई निकलता कोई कहते हो, शर्म भी लगती है, वो क्या करे। लेटरिन पीछे बेशर्मी करना पड़ता है। लेटरिन सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत हो रही है, लेटरिन के पानी की। दूर जाने पड़ता है, बच्चे हैं छोटे छोटे, और वहाँ खुला लेटरिन बाथरूम जाना पड़ता है खुले में।
कोई टॉयलेट नहीं है, ना कोई जगह, बस वही मैदान में ही जाना है। और अब इधर जाते हैं जैसे महावीर चौक पे, तो वहाँ 5 रुपया लेते हैं, बस एक ही लैट्रिन है वहाँ पे, एक बाथरूम। Many of these women face harassment from men while they go out for defecating in the open. Some women told us that they are abused and sometimes even beaten while they go out of their homes to relieve themselves. 3 आदमी 4 आदमी मिल के जब भी घर आ सकते हैं, तो अकेला जाता है, वहाँ पे छेड़छाड़ करता है। आपने इस छेड़छाड़ के बारे में किसी को कंप्लेन की है? नहीं, हम लोग तो किसी कंप्लेन क्या करेंगे, हम लोग गरीब आदमी हैं, किसी को बोलते तो वो सुनवाई नहीं करते हैं। लेकिन पहले था जब मोदी ने बताया तो डंडे मार मार के भगा रहे थे, कोई ना लैट्रिन करने दे रहे थे ना बाथरूम करने दे रहे थे। और लैट्रिन करने जाते हैं तो ऊपर से गाली भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, ऊपर से गाली गंदी गंदी देते हैं। The flyover that you see here is a flyover that connects Ghaziabad to Delhi in a matter of a few minutes. On the other side of the flyover, there are high-rise buildings. Those are well-known, well-equipped residential apartments. On this side, what you see is an open ground where garbage is dumped. This side of the area is used by these men and women to defecate in the open. It almost seems like the flyover is a bridge that divides the haves and the have-nots of the National Capital Region. दिक्कत ये है, यहाँ पे जेंट्स लोग वहाँ से पुलिया जो सामने आप देख रहे हो, वहाँ से देखते हैं। फिर यहाँ पे कुछ गलत लोग वहाँ से आते हैं कनामनी गांव से, वहाँ से हमारे बच्चों को, बीवी बच्चों को देखते हैं सब लोग। ठीक है, लेट जो अनसेफ है यहाँ पे। बस यहाँ पे कुछ लोग इतने हरकत वाले हैं, जो आदमी लेडीजन बैठी हैं तो उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं, वहाँ उनके स्थिर खड़े हो जाते जाके। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे हैं। नहर पे बाथरूम करने जाता है वहाँ पे, और गैर मर्द आता है और उल्टे सीधे बात बोलता है। वहाँ जाने के बाद दिक्कत भी होता है उन लोग को, तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, परदेसी हैं, कोई यहाँ घर नहीं है हम लोग का, किसी से मुंह भी नहीं लगा सकते हैं। इसी वजह से हम लोग मजबूर हो जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। What you're seeing here is a mobile toilet. These toilets were constructed under the government's Swachh Bharat Abhiyan scheme. As you can see, the toilets are placed amidst garbage piles. It is unsanitary, there is no water, and for months, the waste has not even been cleared by the local authorities. दिक्कत सब कुछ है, पीछे लेटरिन बनी, मच्छर आए रहे, डेंगू इतना फैल रहा, बच्चा छोटे छोटे कहाँ लेके जाए। शौचालय की दिक्कत है, शौचालय की बहुत दिक्कत है, बच्चा जा ही नहीं पाए रहे। अब उधर जाते हैं तो उधर आगे लेटरिन कर रहे, पीछे आदमी खड़े तो कैसे लेटरिन करें। और लड़की नहीं बड़ी है तो उधर जाते हैं तो लड़का खड़े तो लेटरिन लड़की भागी होती है डराए के नहीं। और इतनी बदबू आ रही किसके पीछे लेटरिन, मजबूरी में बनाए रखी, उन्हें फारिज मार दो तो उन्हें मजबूरी में बनाए रखी। उधर है, उधर जान नहीं दे, थाने के बगल में है, लेकिन फोन मना करते हैं, कहते नहीं, बोलते हैं कि नगर निगम की नहीं है। जब पिछली बार कंट्रोल करी गई कि लेटरिन मत करो, उधर जान लगे, तो बोले कि पैसा दो, पैसा मांगे थे 5-5 रुपया डेली। अब किसी को दिन में 2 बार लगी अगर, तो वो तो इसी भरे को ही 10 रुपया दे उसे, बोलते सफाई के लिए हमें पैसा चाहिए। ये है कि वहाँ जाते हैं नगर निगम में, रोज के 5 रुपए लेते हैं, इतनी कमाई भी नहीं है हमारी, अकेले कमाने वाले, बच्चे भी मेरे हैं छोटे छोटे, कुछ कर नहीं पाती हूँ, हर चीज़ की दिक्कत रहती है। और गड्ढे खोद रखे हैं, और कभी कभी 3 महीने में भर जाते हैं, जब नहीं जाने देते हैं तो खुले में भी जाते हैं। कुछ बोलते भी हैं? हाँ, डांटते हैं रोज, कहते हैं खुले में जाते हैं, शौचालय बना रखा है, इतने पैसे भी तो होना चाहिए। 10-10 रुपये लेते हैं, नहीं देते तो लैट्रिन नहीं करने देते, कहते जाओ बाहर करो। अच्छा, और वो सरकारी है? सरकारी ही है भैया, हाँ सरकारी। मतलब लैट्रिन करने जाते हैं, पैसे लेते हैं और कहते हैं पैसे दो। और जिस दिन रात को जाते हैं 10 बज जाए, 9 बजे 11 बजे तक तो लैट्रिन करने तो जाना ही, अगर आ गई तो बोलते हैं 10 बजे कोई टाइम है आपका, तो कितने बजे जाएं बताओ। उनमें रात को तुम मैदान में तो नहीं जा सकते, कहाँ जाएं, तो इसलिए बोलते हैं। वहाँ जाने के लिए कोई पैसे लेते हैं, हाँ पैसे भी मांगते हैं। This is a public toilet under the Ghaziabad Municipal Corporation. Here, it is claimed that this public convenience is free to use. Yet, people we spoke to complain that they are charged for using these toilets. This is the condition of this toilet, located in Vasundhara, Ghaziabad. At the outset, our team finds a board where people can push buttons to rate the cleanliness levels of the toilet. This too doesn't work. When we went inside the toilet was clogged with human waste. There was water all around. The flush didn't work
and the stench of the place made it completely unsanitary for human use. कोई आया सरकार की तरफ से आज या नहीं, कोई आज भी तक नहीं कोई नहीं आया। District वो जो कोई मदद भी नहीं आया। करने के लिए आया हो? कोई मदद करने के लिए नहीं आया। वही 1-1 किलो राशन बांट के गए थे लॉकडाउन में। वही हम लोग खा खा के बाल बच्चे पाल के अभी तक हूँ जी। बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ तो, और 3 सालों से हम खुले में ही जा रहे हैं और यहाँ कोई सुविधा नहीं है और दूर है तो रोज जब भी जाओ तो मतलब 5 रुपए लगते हैं, तो वहाँ हम जाते नहीं। ये नगर निगम वाले में जी बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। रोड पे रोड पे है सरकारी शौचालय, वहाँ जाते हैं वो पैसे लेते हैं हम लोगों से। अच्छा कितने? 5 रुपए 10 रुपए, ठीक है। और हम लोगों ने ऐसी गड्ढा खोद के बना रखा है बच्चों के लिए कि बच्चे वहाँ रोड पार करके नहीं जा सकते हैं, इसलिए बच्चों के लिए बना रखा है। यहाँ पे पानी की दिक्कत है, लैट्रिन बाथरूम की, हर चीज़ की दिक्कत है। बस टाइम काट रहे हैं और जब मर्जी यहाँ से झुग्गी तोड़ने को भगा देते हैं हम लोगों को, तोड़ो। अच्छा लैटरिन के बारे में कहा, वहाँ शौचालय में जाओ, सरकारी में 5 रुपए लेता है और नहीं तो भगा देता है, और कहीं लैटरिन की जगह भी नहीं है। हाँ, जैसे हम पैसे जैसे नहीं है, कभी कभी नहीं होते तो कहें कि पैसे नहीं है हमारे पास, कल दे देंगे। नहीं क्या तेरा बाप का है, यहाँ तुम्हारे बाप का है, ऐसे बोलते हैं। This is a document of the Municipal Corporation of Ghaziabad, which is titled Improving Sanitation Services of the Cleanest City of India through Service Level Benchmarking. The document sets guidelines for ensuring that there is no open defecation and open urination taking place within Ghaziabad. The authorities have stated that urination vulnerable points should be identified and removed, and urinals should be constructed at required places. It mentions that the city has been notified against open defecation and open urination, and fines and penalties will be levied on violators. To speak about the deplorable conditions of the public toilets in Ghaziabad, we approached the councillors of Ghaziabad. We also approached the mayor of Ghaziabad. One of the councillors told us that he is an illiterate and he will not be able to answer queries from the media. The mayor of Ghaziabad told us that she will talk to us, but after we explained the story, all our calls and messages were conveniently ignored. This is the state of affairs in Ghaziabad. There is no accountability or transparency in governance. These residents of Ghaziabad say that all they want is basic facilities that can help them live a decent life, where their human rights are not violated, where women don't have to walk for kilometers for their basic human needs, where they are not asked to pay beyond their means for services the government is duty bound to provide them free of cost. अब जय सरकार से बोलने जाते लैट्रिन बाथरूम बनवा दो हमारे। कहना चाहते तो हमको ये बिजली दे दो, लाइट दे दो, बाथरूम दे दो, पानी दे दो, हम लोग को थोड़ा बहुत सुविधा मिल जाए। हम लोग बिहार से किस लिए आए? पेट के लिए कि कमाएंगे खाएंगे। गरीब वहाँ कमाई नहीं होता था, खा नहीं पाते थे, कमा नहीं पाते थे, परिवार नहीं चला पाते थे। यहाँ पे आए थोड़ा बहुत कमाई होता है, 200-400 का कमाते हैं तो घर परिवार चलता है। The Prime Minister's much publicized Swachh Bharat Abhiyan scheme is not working in a city like Ghaziabad, which is a part of the National Capital Region. One can only imagine the plight in far-flung remote areas and villages of the country. पहले ही कितनी ही महिलाएं घर से निकल नहीं पाती थी, काम पर नहीं जा पाती थी, क्योंकि बाहर टॉयलेट की सुविधा ही नहीं होती थी। कितनी ही बेटियों को स्कूल में शौचालय न होने की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। अब इन सब में बदलाव आ रहा है। Swachh Bharat Abhiyan must not be limited to a political slogan. It is the government's duty to ensure that while it levies penalty on people for open defecation, they must also ensure that at the local level, the authorities implement the schemes envisaged by the government. If the government wants people to stop open defecation, they must provide the people with better option. Because the right to safe, secure, hygienic sanitation facilities is a matter of human rights.